गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये दो मोहित कैसे विजिबल हो रहे हैं? क्यों मोहित? दो डिवाइस पे वर्क ऑन कर रहे हो क्या मोहित? नो मैम, सिंगल। तो ये डमी है क्या एक और तुम्हारा? मुझे क्या पता मैम, मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ वापस। हाँ, ये दो मोहित दिख रहे हैं। होप यू ऑल आर गुड। नाउ let's start in our second unit. Today we are on the last topic, that is energy for sustainable development. Till now we completed energy demand management, conservation development. Last class mein we discussed about so many resources and how to conserve them. Is it clear? है ना, यही करना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक. So today we are going to study what is development, sustainable development, concept, view, evaluation, pillars of sustainable development, changing perspective of sustainable development, and what are the approaches for the SD. ठीक है? Then multiple crises which used to it is very easy to say sustainable development means this, it aims for this, it is beneficial, but when we implement, multiple crises used to occur. So what are those crises also that we are also going to discuss. Now the term sustainable development first came into the prominence in the World Conservation Strategy WCS in 1980. ठीक है? कब एग्जिस्टेंस आया सस्टेनेबल का? 1980s में WCS के थ्रू आया कि यस देयर इज अ नीड ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, मतलब इट शुड नॉट बी गेट स्टॉप एंड स्टक, एंड इट अचीव्ड अ न्यू statue with the publication of two significant reports by Brundtland on North and South, a program for survival and common crisis in 1985. ठीक है? फिर common future in 1983 has gained even greater attention since the United Nations Conference on the Environment and Development, that is UNICED, held in Rio de Janeiro in June 1990. मतलब ये जो कोई भी चीज तुम्हारे जो एग्जिस्टेंस में आती है स्टेट गवर्नमेंट वाइज कंट्री वाइज, इट इज नॉट वेरी easy approach to implement it. So many process and chain steps is need to be move ahead. ठीक है? जैसे यहाँ पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 1980s में पहले तो WCS का रहा, फिर it achieved the new status and then move ahead, and finally UNICED, United Nation Conference on Environment and Development ने इसको ऑथराइज किया जून 1990. ठीक है? You want to note it down or it is fine? Should I move ahead? हाँ चल वंदना बोलो बेटा. Yes, yes. Should we move ahead? Yes, yes. Okay. Now what is development? अभी जो अपन ने पढ़ा बेटा वो था इसका हिस्ट्री कि आइडिया केम इन 1980s कि देयर मस्ट वर्ल्ड ने मतलब कंट्री वर्ल्ड वाइड ये सोचा गया कि फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड एवरीथिंग रिसोर्स कंजर्वेशन there must be a continuous development process which should not stop or get stuck at once. ठीक है? फिर ग्रेजुअली उसकी सर्वाइवल और उसके लिए 1985 में डिस्कशन हुआ एंड फाइनली 1992 में इट वाज वेरीफाइड. नाउ कम्स व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ, ये मैं चाहूंगी कि तुम दो लाइन लिख लो. वी ऑल नो व्हाट इज डेवलपमेंट, बट एक जो टेक्निकली लाइन जब लिखनी रहती है तुम सब मिड टर्म और सब में बहुत ही गड़बड़ करते हो, तो बेटर टू राइट दैट इज
Development is a gradual growth of a situation that becomes more advanced and strong than previous one. ठीक है, ये फर्स्ट ये वाली लाइन, मतलब क्या चीज है, डेवलपमेंट एक तरह की ग्रेजुअल ग्रोथ तो है, लेकिन वो हमें कैसे पता चलता है ग्रोथ हो रही है, बिकॉज इट बिकम्स मोर एडवांस एंड स्ट्रॉन्ग देन प्रीवियस वन. वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, उससे अगर हमें एडवांसमेंट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि हाँ पहले से ये चीज बेटर हो रही है, दैट इज डेवलप. Same in your marks of midterm or RTU percentage also. Suppose sometime you are getting the 82%. नेक्स्ट टाइम अगर तुमने 85 या 86 लिया मीन्स तुमने डेवलप किया. लेकिन अगर तुम 82 से 79 पे आए तो मतलब वो ये एडवांस और स्ट्रॉन्ग हो रहे हो तो वो डेवलपमेंट है, नीचे जा रहे हो तो वो डिग्रेडेशन है. सो दैट इज अ meaning of development. It is intended to bring a positive change that is going to be there for human being and its surroundings. Development may take place, bring about a change in a policy, projects and legislation. But development की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा positive change के बारे में ही होता है. And development is a unfolding of human potential for meaningful participation in economic, social, political and cultural process and institutions, so that the people can improve their condition. तुम्हें तो बस ये दो पैरा लिख लो, ये important लिखो. when you complete let me know. जैसे आरटीयू भी जो चेंजेस करता है सिलेबस में, वो किस लिए करता है, स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए, कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में चल रही हैं उससे हमारे स्टूडेंट्स अनअवेयर ना रहें. जैसे ये आईओटी है, मशीन लर्निंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सारा जो चीजें आ रही है अपडेशंस में वो इसी वजह से आ रही है. ओके आंचल, कि हमारे स्टूडेंट्स डेवलप रहें. नाउ this is a meaning of development. Yeah, gradual growth is going to be there in a situation that makes us more advanced. Now comes sustainable development. Sustainable development is a development which meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. वही जो सस्टेनेबल इंजीनियरिंग के टाइम अपन बात करते थे, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग क्या है, द ब्रांच ऑफ अ इंजीनियरिंग which is fulfilling the present demand without compromising the future demands or requirement. तो सेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी मैं चाहूंगी कि तुम लोग ये वाला पैरा लिख लो कि द डेवलपमेंट विच मीट्स द प्रेजेंट सिचुएशन डिमांड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, और ये कंसेप्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था, इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोहेल्बम ब्रुटलैंड in 1985. He was then prime minister. He was उस टाइम वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, and then the chairman of World Commission on Environment and Development. ठीक है, उन्होंने ये कंसेप्ट लाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. ये नहीं कि अभी हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है तो हम आगे का उसमें ना सोचें.
Done, ma'am. Now, sustainable development is improvement of lifestyle and well-being with respect to preserving natural resources and ecosystem. That is a sustainable development. Ki our improvement in lifestyle is also going to carry on along with preserving the natural resources and ecosystem. Now, evaluation of sustainable development concept. रियो टू जॉन्सबर्ग. रियो मतलब जिसने इसको इन्वेंट किया 1987 में, टू जॉन्सबर्ग. ये उन्होंने ये बताया कि evolution of the concept of SD had been 1972 in a conference on the human environment conveyed at the United Nations, the report of the World Commission on the Environment and Development. उसमें इसका इन्वर्जन हुआ और फाइनली इसको ऑथराइजेशन 1992 में मिला. ये अपन पहले ही बता चुके हैं. ये पूरा उसकी हिस्ट्री का वापस बताया कब कब इसको क्या ट्रेडमार्क मिले. दैट इज वेरी इजी एंड वी डिस्कस्ड. अब मेन एम क्या है? द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मैक्सिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज अ टू मेन पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये लिख लो क्या पर्पस है हमारा एसडी का. ऑफलाइन क्लास में भी हमेशा लेट आती है, अभी ऑनलाइन में भी हमेशा लेट आती है नेहा. मैक्सिमाइजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के चांसेस को मिनिमाइज करना. लिख लिया बेटा, जल्दी कर. Yes, ma'am. Done. ओके वंदना. नाउ 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. वन इज अ क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, hydrological cycle and biodiversity. 4 major components. Please write down this. क्या meaning है major component? Means our sustainable development depend on these 4 things. Although we always want a continuous progress and development should be there, but अगर hurdles आते हैं तो भी यही reason है, progress हो रही है तो भी यही reason है. That is a nutrient cycle, hydrological cycle, climate change and biodiversity. ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो तुम हमेशा लिख लिया करो, whether I will give you time or not, and you can tell me, because sometimes the short question type question to be asked in your university paper and you are unanswerable. वो नाम ही नहीं पता है तो तुम उसका डिटेल, जैसे अब ये मैंने क्लाइमेट चेंज बता दिया, एटलीस्ट यू नो द पॉइंट्स, देन यू कैन डिस्क्राइब इट. बट अगर हमें पॉइंट ही नहीं पता है तो हम डिस्क्राइब क्या करेंगे? Is it clear? 4 major components लिख लिया. Now comes the example of, लिख लिया, note it down. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done. Yeah. Now example of sustainable development, once again the same thing, but yes, of course it comes under the example of SD, so you need to be understand and recall. Solar energy, the greatest advantage of solar energy are that is it is completely free and available in a limitless supply. Both of these factor, मतलब इसकी सबसे पॉजिटिविटी क्या है सोलार एनर्जी का? दैट इज कंप्लीटली फ्री है एक तो, सेकेंड लिमिटलेस सप्लाई.
Both of these factors provide a huge benefit to the consumers and help reduce the pollution. और ये सबसे बड़ी बात ये है कि सोलर एनर्जी में बिल्कुल pollution भी नहीं होता है. So it is a huge benefit for consumers and help reduce the pollution. Replacing non-renewable energy with the type of energy is both environmentally and financially both is effective. ठीक है, तो ये एक रिन्यूएबल सबसे बेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज है जो अभी काफी ज्यादा यूज में आ रहा है. स्कूल्स में, इंजीनियरिंग पावर प्लांट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी उन्होंने अपनी रूफ पे सारा सोलार पावर सिस्टम लगा के रखा है. बिकॉज इट इज नो इट रिक्वायर सेटअप में आपको कॉस्ट लगता है, उसके अलावा कुछ भी फ्री है सारा. ठीक है. The second is a wind energy, which is another readily available wind energy sources. Harnessing is the power of wind energy necessitates the use of windmills. Okay. However, due to the construction cost and finding a suitable location, this kind of energy is meant to service more than just the individual. एक्चुअली वाइन मिल्स में यह है, एक तो इसका सेटअप जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव. सेकेंडली, सुटेबल प्लेस टू सर्च वेयर द कंटिन्यूअस वाइंड इज यूज टू ब्लो and don't damage the wine mills. That is going to be the main criteria in this. And wine energy can supplement or even replace the cost of grind power. Therefore, may be the good investment and remains a great example of sustainable development. It is using in a huge amount, yes, but as compared to solar, इसका थोड़ा construction cost ज़्यादा होता है. सेकेंड, सोलार प्लेट हम कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि सभी जगह सोलार रेज रहती है. बट वाइन मिल्स को लगाने के लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हम इसे लगाएं, कहाँ फ्लो सही है, कहाँ नहीं. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी देयर. क्रॉप रोटेशन इज अनदर थिंग. फार्मिंग प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन से क्या मीनिंग्स है? फार्मिंग प्रैक्टिस इज अ बेनिफिशियल सेवरल वेज एंड इट इज अ केमिकल फ्री. क्रॉप रोटेशन का मीनिंग है ये एक ऐसी अप्रोच है दैट प्रूवन टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ लैंड. क्रॉप रोटेशन मीन्स सेम फील्ड में सेम क्रॉप ना लगा के चेंज करा जाए, उससे भी वो सस्टेन होती है, वो जमीन जो रहती है और ज्यादा उपजाऊ बनती है. सो दैट इज प्रिवेंटिंग द डिजीज एंड इंसेक्ट इन द सॉइल. Not only can this form of development benefit the commercial farmer, but it can also give those who garden at home. तो क्रॉप रोटेशन भी एक तरह का एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि ऑन द सेम फील्ड रोटेशन वाइज क्रॉप्स को लगाया जाए. efficient water fixtures. According to EPA, that takes a lot of energy to produce the transport water and to process waste water. Efficient water fixtures क्या मीनिंग ये है कि जो भी वाटर सप्लाई हमारे पास है उसको इफिशिएंट वे में यूज करना और ऑप्टिमाइज वे में यूज करना. इवन जो वेस्ट वाटर उसमें आ रहा है उसको भी किसी अनदर वे में यूज करना. It is important that sustainable water use is employed at the individual and societal level. Efficient water fixture. फिर ठीक है, ग्रीन स्पेस अकॉर्डिंग टू यूवी, ये भी एक अनदर एग्जाम्पल है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग ने एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन स्पेस इंक्लूड हेल्पिंग द रेगुलेट एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट. जनरली ग्रीन स्पेस को वो फेवर कर रहे हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज इट रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ काउंटरिंग द वार्मिंग effects of paved surfaces, recharging the groundwater supplies, protecting the lakes and streams from polluted runoff. तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सोलार एनर्जी, वाइंड एनर्जी, क्रॉप रोटेशन, efficient water fixture and green space according to the UW. ठीक है,
Now comes the pillars of sustainable development. Pillars of sustainable development की बात आती है, that is social development, economic development and environment protection. Interdependent and mutually reinforcing pillar of SD जो है, ये यूनाइटेड नेशन ने 2005 में वर्ल्ड समिट आउटकम डॉक्यूमेंट में दिया था कि देयर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं, दैट इज सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट को या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है. ना ये 3 पिलर्स तो जनरलाइज अपन ने लास्ट ईयर भी लास्ट सेम में सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़े थे. 4th पिलर जो हिडन रहता है, दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी. इन तीनों के अलावा that is a necessary for humankind as biodiversity is for the nature. Biodiversity जो भी ये सुनामी, कई बार अर्थक्वेक आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, ये क्या है? सब बायोडाइवर्सिटी रहते हैं. तो कल्चरल डाइवर्सिटी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बाईपास नहीं कर सकते. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैनॉट बी अंडरस्टूड simply in terms of economic growth, but also as a meaning or to achieve a more satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence. Okay, that is going to declare, ये जो 4th pillar है, that is declared by UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity in 2001, that cultural diversity cannot be bypassed, and it is should be understand that this is a term for the economical growth, but also the means to achieve the more satisfactory intellectual, emotional and moral existence. Okay. तो कल्चरल डाइवर्सिटी को हम फिर पुटिंग टुगेदर करके करते हैं, तो हमारा जो अब मेन पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, तो वो इस तरह से, वो पहले भी मैंने तुम्हें टाइम इसीलिए दिया था कि तुम इसको बनाओ. बनाने का मीनिंग ये है कि ऑल दीज 3 पिलर्स आर को रिलेटेड सम एंड अनदर हाउ. ठीक है. और अब हम इसको 4th पिलर को कंबाइन करेंगे इसमें. So this is, the circle is going to be like this. The whole big circle is your environmental protection. This is a social development, फिर economical development, and in between both your cultural diversity is there, and among all balanced management your environment is used to be protected. ये वाला बार ग्राफ बना लो.
ठीक है, आई सपोज बना लिया बेटा। नेहा, तन्मय, वंदना, आंचल, भावना। Yes, Now yes. comes what are the desired outcome of sustainable development. हम कौन से डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ये भी मैं चाहूंगी या तो स्क्रीनशॉट लो या लिख लो तुम। दैट इज क्लीन वाटर एंड एयर, fertile soil and good food, a livelihood and a healthy economy, an optimum population size, safety from poverty and disease, social contact and a sense of community, work, rest and celebration. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काम करना है हमें, थोड़ा रिलैक्स भी होना है और चीजों को सेलिब्रेट भी करना। दैट इज द वन बेस्ट आउटकम ऑफ योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटीज टू लर्न and halting global warming, that is a major target or we can say major desired outcome कि जो ये कभी भी सुनामी आ रहा है, कभी अर्थक्वेक आ रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग, इसको हमें हॉल्ट पे रखना है, इसको हमें बढ़ने नहीं देना है। सो दीज आर योर डिजायर्ड आउटकम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट चाहते हैं उसके ये आउटकम्स हैं। लिख लिया बेटा? Done now. CIDA's फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही है, वही जो चार अपन ने लिखे थे वही है इसमें। दैट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, नाउ कम्स दिस इज माई एनवायरमेंट। अब इन्हीं चारों को उसने किस तरह से एक के बाद एक इंक्लूड किया है वो देखो तुम लोग। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स इकोसिस्टम इंटीग्रिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मैनेज्ड पॉपुलेशन साइज। दैट इज माई मेन पॉइंट फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कि पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी ना बढ़े और इकोसिस्टम इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ecosystem integrity need to be maintained with a biological diversity and managed population size. That is going to be first thing. Then comes in environmental protection. ये इसका screenshot ले लो, लिखना है तो लिख लो। Topic is about to complete. ठीक है, देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर हम जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिलोंग्स टू appropriate economic policies, efficient resource allocation, more equitable access to resources, increase the productive capacity of the poor. मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमारे मेन ये 3 पॉइंट हैं that need to manage. Then when I am putting the economic development in this, then these 5 points need to be managed, like appropriate economic policy, efficient resource allocation, more equitable access to resource, increase the productivity capacity of the poor. ये सारा अपने को देखना है।
Okay, then in the economic development under the environmental protection, when we talk about the social development, this, see, in the green circle, the blue circle is your economical development. Now this brown circle is the social development. That is for improved economic distribution, gender equity, investing in the basic health and equation, emphasizing participation of the beneficiaries. This is going to be there in your social development, which is coming under your environment protection and economic development. सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा? इंप्रूव होगी तुम्हारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर इक्विटी, इन्वेस्टिंग इन द बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन, एम्फसाइजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज, ये सब रहेगा इसमें. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के बाद जो फोर्थ पिलर आ रहा है, ये फोर्थ पिलर तुम्हारा सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में नहीं था. इट कम्स इन डेवलपमेंट, दैट इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी. दैट इज गोइंग टू बी द सेंसिटिविटी, cultural diversity, that is sensitivity to cultural factors, recognize of value conducive to the development. Yes, ma'am. Fine. Now the principle of sustainable societies. That is also important topic for your short question answer. Ki what are the principle for the sustainable society? Respect and care for the community of life, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of non-renewable resources, keep within the earth's carrying capacity, provide the national framework for integrity development conservation, and create the global alliance. ठीक है, ये तो बेसिक पॉइंट्स है, तुम लोग लिख लोगे, डजंट मैटर. सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन fossil fuel, underground metal, minerals, reduce the dependence on the synthetic chemicals and other unnatural substance, reduce the encroachment upon the nature. That is going to be there. That's it. What is our goal in sustainable development? That is very important, that which requires the active involvement of all stakeholders, whether it is a government, NGO, private sector, civil society. And it is not just politicians or the policy makers who decide what SD should be like. And you have to remind policymaker to make decision to protect your future. You can remind them that you want better job, cleaner city. मतलब हमें बार बार हमारे जो ये पॉलिसी मेकर्स रहते हैं उनको ये रिमाइंड कराना है कि यू वांट बेटर जॉब्स, क्लीन सिटी, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस,
above all the guarantee that your future is secure, full of opportunities, a pleasant world to live in and healthy planet. Problems जो आती है वो क्या है? Where poverty and population pressure interacts, human and their environment is going to suffer. What is needed to achieve in the sustainable development? Eco-friendly. Present generation should aware the needs of present and future. Ensure the productive assets. Technology that need to develop, implement, which helps to conserve resource. Okay, that's it. बाकी वापस से अगर अपन दूसरी स्लाइड भी देखेंगे तो दैट इज अ रिपीटेशन. रोल ऑफ एनर्जी इन एसडी, ये जरूर अपन कल क्लास में तो ये मैं जरूर तुम्हें कल बिफोर स्टार्टिंग अवर 5th यूनिट एनर्जी ऑडिट विल वंस गो. अभी अपन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा. रोल ऑफ एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे आए हुए थे. वेरी शॉर्ट ब्रीफिंग इज देयर, मतलब इंडस्ट्री से कोरिलेट करके किया है, ये अपन कल करेंगे. नाउ फर्स्ट गिव योर अटेंडेंस बेटा. आंचल, भावना, Present, ma'am. मनदीप, मोहित, Present, ma'am. मोहित प्रेजेंट मैम. तन्मय, नेहा, Present, ma'am. Present, ma'am. Bhavna present, ma'am. वंदना, Vandana present, ma'am. एक प्रोजेक्ट वगैरह पे काम चल रहा है वंदना? Yes, ma'am. Almost. चलो ठीक है. मैम प्रेजेंटेशन के लिए पूछना था, आप कह रहे थे ना? हाँ, वो मैं लेती हूँ एक बार. थोड़ा सा मेरे आईटी की एक डीआईपी लैब का कुछ 2-3 लैब रहती है, वो मैं नेक्स्ट वीक एक ही लूंगी, तब अपन रखेंगे. प्रेजेंटेशन में ये करना है तुम लोगों को कि जो भी काम किया है उसकी स्क्रीनशॉट लेके और पीपीटी में डालो. और अगर तुम डेमो भी बता सकते हो तो दैट इज ऑल्सो गुड बाय शेयरिंग योर स्क्रीन, है ना. फॉर दैट आई एम गिविंग यू दिस वीक टाइम ऑल्सो. अश्विनी वगैरह का मैसेज आया था कि मैम गिव दिस वीक टाइम ऑल्सो, तो आई एम गिविंग. नेक्स्ट 5 तारीख के 5 या 6 मई के आसपास अपन करते हैं, ठीक है. ओके, Yes, ma'am. Thank you. सी यू, टेक केयर. हाँ बोलो बेटा आंचल. मैम वो पीपीटी और जो 2 पीडीएफ्स अपन ने कॉलेज में डिस्कस किए थे वो आप मेरे को मेल कर सकते हो कि एक्चुअली नोट्स के लिए चाहिए थे. से वाले मैम वो जो फर्स्ट और सेकंड पीडीएफ था एनर्जी मैनेजमेंट वाला, और जो पीपीटीज की शॉर्ट वाली आपने बनाई थी वो हाँ, दोनों. अभी एक्चुअली क्या लैब और सब साथ में चल रहा है, मेरे पास 2 लैब और ये भी है, वो मैं कर दूंगी तुम लोगों को. तो मैं मतलब वही जो फर्स्ट यूनिट का कह रहे हो, यस एक बार अपना फर्स्ट मिड टर्म का सिलेबस नहीं मैम, सेकंड यूनिट का जो अपन ने कॉलेज में याद नहीं आ रहा है, लेकिन यू डोंट वरी, फर्स्ट यूनिट तो मैंने दे दिया था. सेकेंड यूनिट का भी जो मटेरियल है ना, वो अपन एक बार मिड टर्म का सिलेबस हो जाने दो, फर्स्ट सेकेंड 5th यूनिट और हो जाने दो, फिर तुम मुझे मैसेज कर देना 5th यूनिट कंप्लीट होने के बाद, और एक बार रिमाइंड करा देना, मैं मेल कर दूंगी, नो इशू, ठीक है. अगर उस टाइम तक अभी जैसे हम लोग साथ में नोट्स भी बना लेंगे, उस टाइम तक बहुत लेट हो जाएगा, फिर 2 चैप्टर्स का बर्डन हो जाएगा इस वजह से. लेट आई सी ना, मेरे को जैसे कन्वीनियंट होता है मैं भेजती हूँ. क्या मतलब क्या भेजना है तुम्हें, टॉपिक का नाम मेरे को मैसेज करना, ठीक है. मैम हाँ, मैं मैसेज कर दूंगी आपको. ओके बेटा, आई विल डू. ओके, सी यू, टेक केयर.